آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب محمد رزاق صاحب، امیدوار اسمبلی آزاد کشمیر حلقہ 6، ہمارے دیگر مہمان جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور خصوصی طور پہ کیونکہ وہ ہمارے مہمان ہیں، اگر میں نام صحیح طرح نہ بھی لکھ سکوں، راجہ یونس صاحب موجود ہیں، یوسف صاحب موجود ہیں، اسکر صاحب موجود ہیں، وحید اکرم صاحب موجود ہیں۔ یہاں پر اسٹیج پہ یہ زیر صدارت آج کی جو تقریب ہے وہ مجھے یہ اعزاز بخشا۔ میں مشکور ہوں کمیٹی کے ممبران کا، میرے محترم بڑے بھائی راجہ محمد عارف صاحب، میرے چھوٹے بھائی راجہ محمد فاروق ایڈوکیٹ صاحب، اور یہاں پر موجود جو نہیں ہیں میرے بڑے بھائی راجہ محمد خلیل صاحب۔ میں جو باہر سے مہمان آئے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اعزاز بخشا میرے بھائیوں نے، میرے کنبے قبیلے نے، کہ وہ ہمارے مستقبل کے لیے سیاسی فیصلہ کرنے کی جو انہوں نے یہ اعزاز بخشا ہم چاروں کو، ہم نے اس میں راجہ محمد فاروق صاحب کو اپنا قائد مانا۔ وہ عمر میں چھوٹے ہیں لیکن حلقے میں لوگوں سے تعلقات میں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی کہ وہ سیاسی فہم و فراست میں ہم سے آگے ہیں، وہ اس کو لیڈ کریں گے۔ اور خصوصی طور پہ میں مشکور ہوں ان تمام بھائیوں کا جو میری برادری کے یہاں پر موجود ہیں کہ جنہوں نے یہ ہمیں اعزاز بخشا۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ یہاں پر چائی کے باہر سے جو آج اس جلسے کی رونق بڑھانے کے لیے تشریف فرما ہے، میں ان کا انتہائی اپنے دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ میرے بھائی بھی بات کریں گے، مجھے یہ سمجھ نہیں کہ ترتیب کیا ہوگی۔ میں نے سیاسی جلسے بڑے کم اٹینڈ کیے، سرکاری زیادہ کیے۔ تقریب صدارت کی کس طرح ہوتی ہے، مہمان خصوصی کو کس طرح بلایا جاتا ہے، اور باقی لوگوں نے تقریر کرنی ہے۔ میں تھوڑا سا جذباتی اور بڑا بلنٹ آدمی ہوں۔ میں نے جو اس وقت موجودہ اسٹیٹ سیکرٹری ہیں انہیں 2 منٹ کے بعد میں نے کہا کہ آپ بہت محترم ہیں، یہ میرے ایک گاؤں کی تقریب ہے، یہاں کا اسٹیٹ سیکرٹری جو ہے وہ یہاں کا مقامی ہوگا۔ یہ میری سوچ ہے اور اسی سوچ سے آگے بڑھنا ہے کہ میری حیثیت کو آپ اووررن نہ کریں گے۔ تاہم تھوڑا چلنے کے بعد محسوس ہوا کہ شاید جلسے کی رونق نہیں بن رہی، اور ان بھائی نے دوبارہ ان کو کہا گیا کہ آپ اس کو آگے بڑھائیں۔ اس سے یہ نعرے لگوانا، یہ ٹائم لوگوں کے نام صحیح طریقے سے لینا، اس سے چونکہ کارروائی اور زیادہ اچھی آگے بڑھتی ہے، لیکن ہمارا مقصد جلسے کے نعرے اور اس کی تقریب کو زیادہ پررونق بنانا مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے کہ یہاں کے لوگوں کی اور جو دیگر ہمارے ہمسائے یہاں پر اس قافلے میں شریک ہو رہے ہیں ان کی آواز سنی جائے، کیونکہ میں مقرر نہیں ہوں اور اس شاندار طریقے سے لوگوں کو محظوظ نہیں کر سکتا اپنی آواز سے کہ جو میرے بھائیوں نے کیا ہے۔ تو میری بات بہت سادہ ہوگی، آپ میرے چہرے پہ رونق نہیں دیکھ رہے، خوشی نہیں دیکھ رہے، یہ سارے لوگ محسوس کر رہے ہوں گے، اور یہ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کمیٹی نے یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں کیا۔ یہ لوگ آپ مد نظر رکھیں، اور جو دوسری برادری کے لوگ ہیں وہ خصوصی طور پہ مد نظر رکھیں، وہ ہمیں مبارکباد ضرور دے رہے ہیں، وہ خوش ہیں، لیکن اس کمیٹی نے کس طریقے سے فیصلہ کیا ہے۔ ہم ایک عرصے سے
इस बरादरीज़म का शिकार हैं और मैं भी उसका हिस्सा हूँ, रहा हूँ। आज हमें इन लोगों ने जब अपने मसाइल से भी आगाह किया और हमें खुद भी मसाइल का एहसास है और ये सोचा कि कैसे इस कुएं के मेंढक से हम कैसे कुछ बेहतर आदमी बने। क्या हम बरादरीज़म से निकलेंगे? क्या हम खोटे खरे की पहचान कर सकेंगे? अभी बड़ा वक्त है इसमें, अभी हम वहां नहीं पहुंचे। मेरे भाई कह रहे हैं कि हमने बुत पाश कर दिया। यार रियलिस्टिक बातें करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बरादरीज़म के बुत को हमने थोड़ा सा झटका दिया है। मैंने चौधरी रज़ाक साहब से जो भी मुलाकातें हुई, मैंने कहा कि आपके यूनियन कौंसिल पूना में आपने इसको काफी हद तक साबित किया। आप में इज़्म कम है। जो आप मशरक की तरफ आते जाएं, यहाँ पर ये लानत बहुत ज्यादा है। और यार ये बातें ना करें, अगर आप बातें कर रही हैं तो दूर चले जाएं। ये इसलिए उस एक इतना बड़ा इम्तिहान में डाला। इससे पहले हम फैसले ये करते आए हैं और बड़ी आसानी होती थी, 5-10 मिनट में हम फैसला कर लेते थे कि हमने इसी स्टेज इसी हिसाब से चलते रहना है। अल्लाह के फजल से चाई में हमने जिसको भी सपोर्ट किया उसको हमेशा जितवाया और फिर हल्के के लेवल पे हम पिछले 30-32 सालों से हारते आ रहे हैं और उसका जो खमियाजा होता है वो भुगते आ रहे हैं। उसका मुकाबला भी करते करते हमें बरादरीज़म और परवान चढ़ा और जो नाइंसाफियां हुई उसकी वजह से नौजवान नस्ल हमारी और मुतनफ़र होती गई। ताहम मेरे जो यूथ फोर्स के सदर ने ये बात की कि हमारा मंशूर का दूसरा पॉइंट बरादरीज़म का खात्मा है। ये एक ऐसी नई सुबह की तुलू है, ये नवीद है कि नई रोशनी में ये फहम आ गया कि हमारे मसाइल का हल किस तरह से होगा। बात मुख्तसर करता हूँ क्योंकि यहाँ पर जोश खिताबत में ये समझा जा रहा है कि बस सब कुछ खत्म हो गया, मुखालफत खत्म हो गई, हम जीत गए। ऐसा नहीं है। मैं ये बात आखिर में करना चाहता था, लेकिन मैं अपने तमाम दोस्तों से, भाइयों से, चाहे से बाहर भी ये बात करूंगा कि हमने जिस मुश्किल तरीके से ये फैसला किया है, इस पे हमारे चेहरों पे रौनक लाने के लिए आपको इसको हमें साबित कदमी से आगे बढ़ाना है। हमने नेक नीयती से ये देखा कि इसी बरादरीज़म के अंदर रहते हुए इसको थोड़ी दराड़ कैसे डाली जाए और फिर वो फैसला किया जाए कि हम एक ऐसे बंदे को असम्बली में भिजवाएं कि जो पहले से ही बरादरीज़म पे कम यकीन करता है, कदरे और कम मुतअस्सब है, ताकि यहाँ पर जो मेरिट की पामाली है, जो नफरत की बीज जो बोया जाता है, उसको ख़त्म करने में हम किरदार अदा करें। हमारी नस्ल इसकी भीड़ चढ़ चुकी, आने वाली नस्लें जो हैं उनके लिए बेहतरी हो। तो हमने ये मुश्किल फैसला किया। आप लोगों ने इसको आगे बढ़ाना है, लेकिन बरादरी का बुत तब पाश होगा कि जहां हल्का सिख समानी ये मौजूदा हैसियत में अगर कायम रहता है कि जहां पर दो जाट बरादरी के बंदे लड़ के भी वही जीतेंगे, यहाँ पर राजपूत या बाकी कबाइल का मिलकर लड़ना जीतना मुमकिन नहीं है। जब वो वक्त आएगा कि किसी और कबीले का या राजपूत कबीले का कोई कैंडिडेट जो है वो इस तरीके से चाई से या इसके मुलिका कबाइल से उसकी सपोर्ट में जाट बरादरी जो है वो यहाँ हमारी जगह पे पहुंचेगी, उस दिन ये बुत पाश होगा। हम उस तरफ रास्ते पे चल पड़े हैं, क्योंकि यकदम एक दिन में या 5 सालों में ये खत्म नहीं होगा। हमने उस तरफ कदम बढ़ाया है, इसको कैसे आगे लेके परवान चढ़ना है, इसमें बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन इन मुश्किलात को हमने इकट्ठे अबूर करना है और तभी जाकर हम इस पे कामयाबी हासिल करेंगे।
मीडिया के नुमाइंदों का मैं खुसूसी तौर पे अपनी कमेटी की जानिब से तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो इसकी कवरेज के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाई। मैं आइंदा आने वाले मुकर्रीरीन से ये कहूँगा कि वो जलसे की सदारत गयूर मेरा कबीला के नामजद कमेटी को वो इसका इजहार करें, किसी एक बंदे का नहीं। मेरे भाई राजा आरफ, राजा फारूक और मैं हम इकट्ठे इस जलसे की सदारत कर रहे हैं। कितने मेरे भाइयों ने ये फैसला करते हुए कि 4 बंदों को ये फरीजा सौंपा कि ताकि 1 से 2, 2 से 3 बेहतर, 3 से 4 बेहतर, कि वो सोच समझ के फैसला करें। हमने मुस्तकबिल देखा, माजी को देखा, हम जिस जमात के साथ, जिन कायदीन के साथ चलते रहे, हमारे उनसे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, रिश्तेदारियां हैं और बहुत मकामात पे हम इकट्ठे होते हैं, हमारा जीना मरना इकट्ठा है। इसलिए ये सियासी फैसला करना कि इलाके की डेवलपमेंट, इलाके में मेरिट की बहाली, इलाके में नेपोटिज्म का खात्मा, यहाँ पर नौजवान बच्चियों को उनकी मेहनत के मुताबिक उनका सिला मिलना, इसके लिए हमें क्या किरदार अदा करना है, वो चीज़ें मद्देनजर रख के हमने अपनी बरादरी से हट के, क्योंकि हमें ज़मीनी हक़ाइक़ से ये लगता है कि इस मौजूदा सूरत हाल में हम चौधरी अली शान सोनी या चौधरी मोहम्मद रज़ाक में से किसी एक ने कामयाब होना है। और हमने जिस शख्सियत को बेहतर समझा, जिनका माजी देखा कि वो बेहतर है, जिनके बड़े भाई चौधरी रशीद एक नेक नाम लीडर रहे हैं, हमने उनके हक़ में फैसला किया। और ये जितने भी यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं वो ये ज़हन में रखें कि मेरे भाई जो मेरे फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने हार नहीं की तरफ जाना था तो फिर आप पहाड़ चढ़ जाते। खुदा के लिए हमें इस चीज़ से आपने बचाना मिलके, हमने आपका साथ दिया है। आपकी जो हवा चली है इसको कामयाबी तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। और मैं अपने उन दोस्तों से जो चौधरी अली शान साहब के यहाँ पर सपोर्टर हैं, हल्का 6 से भी सपोर्टर हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए हमने कदम बढ़ाया है, आप भी इस काफिले को शामिल हों ताकि जिस नेक मकसद के लिए हम आगे बढ़े हैं, मैं ये बार बार इज़हार कर रहा हूँ और चौधरी रज़ाक साहब से भी हर मीटिंग में इज़हार करता हूँ कि हम एक नेक मकसद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम मुसलमान हैं, मेरे भाइयों ने पहले ये बात कर ली, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम एक नेक काम में जा रहे हैं कि जिस बंदे की शोहरत ठीक है, जो नेपोटिज्म का खात्मा करने का दावेदार है और जो मेरिट की बहाली में हमारी मशावरत में ये बातें तय हुई, इस इलाके की तरक्की के लिए उन्होंने ये कहा कि मेरी ये अवलीन तरजीह होगी। आपने देखा कि समानी से चाई सड़क सबसे पहले राजा मकसूद साहब जब MLA बने तो उस वक्त बनी, लेकिन एक अरसे से वो हारते आ रहे, या नून लीग हारती आ रही, या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और चौधरी रशीद साहब और उसके बाद चौधरी अली शान साहब सोनी यहाँ से कामयाब होते रहे। मैं आप उस तमाम उन लोगों को ये बावर कराना चाहता हूँ कि खुदा के लिए आपने ये जिम्मेदारी क्यों नहीं समझी कि ये सड़क आपकी भी है, क्योंकि आपने ये मुतालबा नहीं किया। अभी हमने ये फरीजा उठाया है कि हम इस बंदे को, चौधरी मोहम्मद रज़ाक साहब को कामयाब करके सबसे पहले इस सड़क को जो है वो ठीक करेंगे। और किसी का एहसान नहीं होता, हम इस कौम का हिस्सा हैं। इन तरक्याती फंड्स हमारे भी मिल्कियत हैं, लेकिन हमारी कमज़ोरियों से, हमारा बरादरी इज़्म की वजह से, ज़ाती अनाज की वजह से हमारे मुतालबात पूरे तरीके से हमारे कायदीन तक जाते ही नहीं रहे, और गए हैं तो उस पर अमल नहीं हुआ। मेरे
ایک بھائی نے پہلے بڑی خوبصورتی سے حوالے سے بات کر دی. تو میں چونکہ کافی وقت گزر گیا، باتیں تو بہت ساری میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن میں اپنی مشکل بتائی ہے، یہ ایک مشکل فیصلہ کیا ہے. خدا کے لیے اس مشکل فیصلے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ سب ہمارا ساتھ دیں. ہم سب کی یہ سربراہی ہوگی. تو میں سٹیج پہ بیٹھے مہمانان گرامی اور اپنے بھائیوں کا، کمیٹی کے ممبران کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پہ بہت محنت کی اور جس فراغ دلی سے ایک نقطے پر ہم پہنچے اور یہ مشکل فیصلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رکھے اور یہ صحیح ثابت ہو. وما علینا الا البلاغ.